नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। एक बार फिर आपका स्वागत है। कुंडली बॉर्डर, जिसको सिंगो बॉर्डर भी बोलते हैं, वहाँ की हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं। और अब जो हम आपको अपडेट जो दे रहे हैं, जैसा कि टाइटल के अंदर है कि यहाँ पर निहंग सिख हैं, उनके हवाले ये बॉर्डर कर दिया गया है। यानी कि जैसे ही मोर्चा पुलिस का है, उसके बाद में इन्होंने अपना डेरा शुरू कर दिया है। तो ये कब आए हैं, क्या मिशन है और क्या इनका निहंग सिखों का क्या इतिहास है, वो पूरी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इनसे पूछते हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सारी गुरु नानक लेवा संगत नूं मैं गुरु कलगीधर पातशाह जी दी जो फतेह बुलाई हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो कि आप जी सारे भली भांत जानते ही हो कि जो दिल्ली दी सरकार ने जो ये बिल पास किए हुए आ, जो किसानां दी एक भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬਿਸਤਰ, ਜੋ ਲੋ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੂਗੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ का ਖਾਲਸਾ ਇੱਥੇ ਤਤਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਇਹੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ 19 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਇਹਦੇ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸੱਜਣ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੰਨ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਰ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। अभी 10 दिन हो गए किसानों को यहाँ मोर्चा लगाए हुए। पहले किसान यहाँ थे, लेकिन अब आपकी जो गुरुओं की फौज है उसको आगे कर दिया गया है। यहाँ पर आगे जो पूरा बॉर्डर शुरू होता है और उसके बाद आपने यहाँ पर डेरा लगाया है। तो ये जो बदलाव हुआ है, ये क्या एक संदेश दे रहे हैं? हम तो जैसा किसानों के शंभू बॉर्डर से लेके हम किसान भाइयों के साथ ही थे, बट जब इन्होंने हमारे पे लाठी कुछ मतलब ऐसे गोले चलाने शुरू कर दिए, तो हमारी कौम का शुरू से इतिहास है कि जे जिउना है तो अणख दे नाल, जे मरना है तो धर्म दे वास्ते। सो असी इस करके इस बॉर्डर के उत्ते मेन मुੱਢ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਦਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, भावें सरकार जिद्दां मर्जी कर ले। मतलब पहले जैसे आंसू गैस के गोले दागे गए थे, वैसे ही अगर दोबारा से अगर सरकार कोई हरकत करती है तो आप अपनी तरफ से पूरा लाव लश्कर पूरा आपके हिसाब से अब लेके आए? देखो जी, गुरु का खालसा जो है ये तो हमेशा लाव लश्कर से तैयार पर तैयार ही रहता है। जो एक सरकार, ये राजे रजवाड़ों का बाणा है। जहाँ किधर भी हम जाते हैं, हम हमारे लश्कर के साथ ही पहुँचते हैं। अभी पीछे आपने यहाँ पर बाज है, तो ये क्या संदेश देता है, बाज रखते हैं, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है? ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सबसे ऊंचे दर्जे वाले जो
बाज है, महाराज ने इसको बहुत पसंद किया है। और गुलाम है, जो ये बाज है ये कभी गुलामी किसी की सहन नहीं करता। सो ये पंथ के पास ही रहता है। जब भी हमें कोई संदेश देता है, ये हमें कोई ना कोई दृश्य दिखा देता है कि भी हाँ भी तैयार पर तैयार है फौज हमारी। ये फौज को मतलब एक निरीक्षण देता है कि भी हाँ हम चढ़ती कला में हैं, हम कैसे हैं। निहंग सिखों के इतिहास के बारे में थोड़ा बताइए कि कब क्या इतिहास है, कब से इनको इस तरह से अव्वल दर्जे का इनको माना जाता है, वो कब से मानते हैं? साहिब कमाल साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह जब श्री अनंतपुर साहब से निकले थे, तब घोड़सवारों के साथ निशान नगारे और जो अपना रस्त बस्त है, जो अपना लो लंगर जिसको अपन लंगर कह देते हैं, महाराज वो लेके निकले थे वहाँ से। सो ये महाराज ने उस टाइम से ही परंपरा हमें बताई है कि भी जो हम एक जगह, कभी हम हमारा घर पे एक जगह रहते हैं, भी कोई बिल्डिंग बना लिया कुछ, निहंग सिंह फौज जो है ये रड़े मैदान मतलब जिसको कहते हैं खेतों में अपना घर बना के, जैसा कि ये खुले आसमान के नीचे जैसा आप देख सकते हो, ऐसे बना के भी हम हमारी रहायश ऐसी ही करते हैं। और ये राजे रजवाड़ों की रिहाइश है ये। सो जब हम किधर नगर कीर्तन खेलने जाते हैं, हमको गुरु की संगत बुलाती हो, हम हमारा लहो लश्कर जो ऐसी ही लेके हमारी एक पालकी होती है गुरु ग्रंथ साहब महाराज की, जिसके अंदर हम श्री अखंड पाठ साहब करते हैं, जिसके अंदर एक गाड़ी हमारी होती है भी जो रसद जो खाना पीने का जो लंगर का सामान होता है वो हम उसके अंदर, और कुछ गाड़ियों के अंदर हमारे घोड़े हाथी वगैरह जो भी हम आगे हमारे गुरु महाराज ने जो हमारी प्रथा चलाई है हम उसको बरकरार रखते हैं। मतलब जैसे पुराने जमाने में लड़ाई के लिए जाते थे तो जो पूरा लाव लश्कर लेके जो एक माहौल होता था, वैसा ही आज ही आप रखते हैं इसको? ये जुगो जुग अटल है जी, ये जो ये ऐसे ही रहेगा। और जो ये खालसा पंथ है ये प्रगट किया है गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने। सो जो प्रगट की होती है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होता। सो इसलिए ये हम हमारे लव लश्कर लेके ही जिधर भी हम जाते, कोई हमको बुलाता है, कोई बहुत मतलब सज्जन पतवंते होते हैं कि भी हमारे घर में आओ, हमारे एरिए में आओ। सो हम हमारा लहो लश्कर ऐसे लेके हम तैयार पर तैयार रहते हैं। और हम जब रात को सोना भी होता है, हम हमारे लहो लश्कर एकदम हमारे सराहने रख के हमारे साथ रख के हम सोते हैं। हम इसको हमारे गहने मानते हैं। हम जो ये लव लश्कर के साथ तैयार पर तैयार है, ये हमारे गहने हैं। जो आज लोग कह देते हैं हम सोने को गहना बोलते हैं, ये हमारे गहने हैं जो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। ये अभी आप कितनी संख्या में आए हैं, कितने घोड़े लेकर आए हैं यहाँ पे? यहाँ इस टाइम पर अभी तो संख्या जो हम देखे जाए तो हम कुछ 2000 निहंग सिंह यहाँ पहुँच चुके हैं। सो अभी कुछ निहंग सिंह पीछे है। घोड़ा कम से कम हमारे पास यहाँ गुरु महाराज के जो घोड़े हैं वो 100 के तकरीब यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है, और कुछ निहंग सिंह कुछ दूसरे बॉर्डर पे, और कुछ पीछे से आ रहे हैं। अभी मतलब पूरे इकट्ठे हो रहे हैं सारे? पूरे इकट्ठे हो रहे हैं, हाँ जी। अब आज जो मीटिंग है उससे क्या उम्मीद करते हैं आप? क्या एक्चुअल में सरकार की मंशा है, ऐसी लग रही है आपको कि आपको जो ये लाव लश्कर है इसकी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ये तो देखो जी, ये तो समय समय की जो सरकार ने जब भी हमें कुछ दिया है तो हमें कुछ आश्वासन नहीं दिया है इन्होंने। सो जैसा भी किसान कोई भाई होएगा हमारा भी, जो हमको किसान भाई हमको जो भी कुछ हुक्म करते हैं हम तो उनके साथ में हैं। जैसा वो हमें हुक्म करेंगे भी, गुरु की लाडली फौज किसान भाइयों के साथ तत्पर हाजिर है। चलिए, ये निहंग जो जवान है उन्होंने पूरा बताया है अपने जो जिस तरह का पहनावा है इनका, जिस तरह के ये लाव लश्कर अपने पास रखते हैं, इसके बारे में निहंगों का पीछे का इतिहास क्या है वो पूरा विस्तार से बताया है। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा कुंडली बॉर्डर का ये जो अपडेट है, ये पूरी जो जानकारी आपको दी गई है वो काफ़ी पसंद आई होगी। और यदि आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।